بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2022 برج قوس یعنی سیجیٹیریس کے لیے کیسا ہوگا؟ سیاروں کی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقلی اور قیام سے آپ کے حالات و واقعات پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ آپ کی زندگی میں کس چیز کی اہمیت بڑھے گی اور کن کن مواقع پر آپ کو ذہنی اور دلی طور پر مضبوط رہنا پڑے گا؟ مالی معاملات میں اتار چڑھاؤ اور صحت کی کنڈیشنز 2022 میں کیسی رہیں؟ گواروں کی شادی کے امکان اور بے اولادوں کی اولاد کے متعلق ایسٹرالوجی کے علم کے مطابق تمام معلومات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز قوس خواتین و حضرات، 2022 کیریئر کے حوالے سے آپ کی زندگی میں زیادہ ہلچل نہیں لا رہا، لیکن اس کے بجائے آپ کی زیادہ تر توجہ اپنی جذباتی صحت کو بہتر بنانے اور ماضی کی تلخیوں سے نجات حاصل کرنے پر مرکوز رہے گی۔ آپ کا 10واں یعنی کیریئر کا گھر خالی ہے، جبکہ چوتھا یعنی گھریلو امور کا خانہ پورے ذائچے میں سب سے زیادہ قوت سمیٹے ہوئے ہے۔ پلوٹو کم و بیش گزشتہ 20 سال سے آپ کے دولت کے گھر میں مقیم ہے اور یہ 2022 بھی یہیں گزارے گا۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ مالی امور میں آپ کی چھٹی حص بہترین انداز میں کام کرے گی۔ آپ کی توجہ ویلفیئر کے کاموں کی طرف زیادہ رہے گی اور آپ انسانیت کی خدمت کے کاموں میں دل جمعی سے اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ کا مالی امور کا سیارہ گزشتہ سال سے آپ کے تیسرے گھر میں ہے، اس لیے آپ کمیونیکیشن کے آلات یعنی موبائل فونز اور کمپیوٹرز وغیرہ پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور اس فیلڈ سے شاید کچھ نہ کچھ پیسہ کما بھی رہے ہیں۔ آپ کے مالی معاملات 2022 میں ٹھیک ٹھاک چلتے نظر آتے ہیں اور انشاءاللہ 2022 میں ان میں مزید بہتری دیکھنے کو ملے گی۔ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور 11 مئی کے بعد اس میں مزید بہتری آئے گی۔ صحت کے حوالے سے آپ بہت سے نت نئے تجربات کر رہے ہیں۔ 11 مئی کو مشتری آپ کے 5ویں یعنی تخلیقی سرگرمیوں کے گھر میں داخل ہوگا اور سال کا بقیہ حصہ تفریح اور ہلے گلے سے آراستہ کر دے گا۔ بچہ پیدا کرنے کی عمر کو پہنچی ہوئی خواتین کی بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ مریخ آپ کے 7ویں یعنی محبت کے گھر میں غیر معمولی طور پر طویل عرصہ گزارے گا۔ عام طور پر یہ ایک برج میں 1.5 ماہ کے لگ بھگ قیام کرتا ہے، مگر اس مرتبہ اس کا قیام 4 ماہ سے زائد ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کواروں کو رومانوی تعلقات کے معاملات میں کسی قسم کی تنگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ البتہ جو شادی شدہ ہیں ان کو اپنے تعلق میں اختیارات کی کشمکش کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کا دولت کا گھر گزشتہ چند سالوں سے قوت میں ہے، اس لیے ان گزرے سالوں میں آپ کے لیے پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں رہا اور 2022 میں بھی یوں ہی رہنے کا امکان ہے۔ البتہ جب پلوٹو آپ کے دوسرے گھر سے نکل کر تیسرے گھر میں داخل ہوگا تو ممکن ہے آپ کو مالی طور پر چند بحرانوں کا سامنا کرنا پڑے۔ پلوٹو کے ان اثرات سے بچنے کے لیے آپ کو فضول خرچی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایسے ساز و سامان سے جان چھڑانا بہتر ہے جس کی آپ کو ضرورت نہیں، چونکہ پلوٹو دیگر تمام سیاروں سے کم رفتار پر سفر کرتا ہے، اس لیے ایک برج میں اس کا قیام 35 سال تک طویل ہو سکتا ہے۔ پلوٹو وراثت کا حکمران سیارہ ہے، ممکن ہے آپ کو خاندانی ورثے میں سے بھی کچھ ملا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی جائیداد بھی خرید و فروخت کی ہو۔ آپ میں سے جو حضرات اس عمر کو پہنچ چکے ہیں وہ اپنی وصیت لکھنے کی منصوبہ بندی بھی کر رہے ہیں۔ 2022 میں یہ رجحانات آپ پر غالب رہیں گے۔ 2022 میں آپ کے لیے سب سے عام رجحان یہ ہوگا کہ آپ دولت کے روحانی پہلو کو زیادہ گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، روحانی قوانین کو آزمائیں گے اور مالی معاملات میں اپنی چھٹی حص سے کام لیں گے۔ قدرت ہمیشہ توازن رکھ کر چلتی ہے، بعض اوقات گھریلو اور جذباتی امور کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات کیریئر کی۔ 2022 میں آپ کیریئر سے زیادہ توجہ اپنے گھر، بچوں، جذباتی امور اور کریٹو ایکٹیویٹیز پر دیں گے۔ آپ کے کیریئر میں خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، البتہ آپ خود اپنے کیریئر میں اتنی دلچسپی ہی نہیں لے رہے ہوں گے جتنی کہ عام طور پر آپ لیتے ہیں۔ آپ کا 10واں یعنی کیریئر کا گھر خالی رہے گا، البتہ چوتھا یعنی گھریلو امور کا گھر بھرپور قوت میں ہوگا۔ اس وجہ سے آپ 2022 میں اپنے گھریلو معاملات کو سلجھانے اور سنوارنے میں صرف
करेंगे। यहाँ पर की हुई मेहनत आगे चलकर कैरियर को बढ़ाने में आपके बहुत काम आएगी। 10वां घर खाली होना मनफी नहीं बल्कि बहुत मुस्बत इशारा है। इसका एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप अपने कैरियर के हवाले से मुतमईन रहेंगे और किसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं महसूस करेंगे। 2022 में हालात जैसे भी हुए आपको रास आएंगे। अतारत जो कि आपका कैरियर का सियारा है निहायत तेज रफ्तारी से चलता है और एक साल में आपके जायचे के तमाम घरों और बुर्जों से गुजर जाता है। इसके तहत आपके कैरियर में कई शॉर्ट टाइम रुझानात नमूदार होते हैं जिनका इन्हिसार अतारत की उस वक्त की पोजीशन पर होता है। कौस ख़वातीनो हज़रात, आपका चौथा खाना 2022 में भरपूर कुव्वत में रहेगा जिससे साफ जाहिर होता है कि आपके लिए हकीकी तवज्जो और अहमियत आपके घर और घर वालों की होगी। घरेलू हवाले से 2022 बहुत खुशबाश नजर आता है। खानदानी हल्के की वुसअत बढ़ेगी। उमूमन ऐसा नई पैदाइश या शादी के नतीजे में होता है, मगर ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे दोस्त मिल जाएं जो घर वालों जैसी हैसियत हासिल कर लें। आपके लिए नया घर खरीदने या पुराना घर बेचने के लिए 2022 इंतहाई मुनासिब साल होगा। ऐसे मामलात में किस्मत आपका साथ देगी। आपको घर तब्दील करने के खुशकुन मौके भी हासिल होंगे। आपको इजाफी घर खरीदने का मौका भी मिल सकता है। यह भी मुमकिन है कि आप घर की तामीर मुरम्मत और डेकोरेशन के जरिए घर को एक नया रूप दे दें। बहरहाल नतीजतन आपको यूं ही महसूस होने लगेगा जैसे आपका घर बदल चुका है। किसी दाना आदमी का कौल है कि माजी मुर्दा नहीं बल्कि ये कभी गुजरा ही नहीं। 2022 में आपको इस कौल की हकीकत समझ आने लगेगी। पुरानी यादें रह रहकर आपको सताएंगी। इन यादों का ताल्लुक सिर्फ आपकी जात से नहीं बल्कि आपके खानदान से भी होगा। तारीख में आपको खुसूसी दिलचस्पी पैदा हो जाएगी। अपनी जाती तारीख और दुनिया की तारीख में भी आप वाकयात को एक से तनाजर में देखेंगे और उनकी नई तशरीह भी करेंगे। अगर आप साइकोलॉजिकल थेरेपी करा रहे हैं तो 2022 आपको बहुत फायदा देगा। बहुत से नए इंकिशाफात होंगे। और अगर आप थेरेपी नहीं करा रहे तो घर वालों और दोस्तों के साथ बातचीत भी आपको थेरेपी जैसा ही फायदा देगी। नफ्सियात से जुड़े मामलात बहुत अच्छी तरह आपकी समझ में आने लगेंगे। अगर आप घर की तज़ीनो आराइश का इरादा रखते हैं तो आपके लिए 5 अप्रैल से 25 मई तक के दिन निहायत मौजूद रहेंगे। हल्की फुल्की डेकोरेशन और लग्जरी सामान की खरीदारी के लिए 5 अप्रैल से 2 मई तक का सब बेहतरीन रहेगा। आपके बड़ों में से किसी एक के यहाँ 2022 में बच्चे की पैदाइश मुतवक्की है। एक और बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके माली मामलात 2022 में बहुत उम्दा चलेंगे। वो अपने घर में तज़ीनो आराइश का काम भी कराएंगे। आपके भाई बहनों की जज्बाती जिंदगी गुज़श्ता चंद सालों से अदम इस्तेहकाम का शिकार रही है। मुमकिन है इस अरसे के दौरान उन्हें घर भी तब्दील करना पड़ा हो। ये रुझान 2022 में भी जारी रहेगा। आपकी जिंदगी में शामिल बच्चों के घरेलू मामलात बेहतरीन चलेंगे। सजिटेरियस ख़वातीनो हज़रात, आपकी मोहब्बत और जज्बात के हवाले से बात की जाए तो आपकी रोमानवी जिंदगी 11 मई तक मुस्तहकम नजर आती है, लेकिन 20 अगस्त के बाद इस मास पर खासी हलचल देखने को मिलेगी। शादी या संजीदा ताल्लुक के लिए 2022 आपके लिए कुछ ज्यादा मौजू नजर नहीं आता। ताम रोमानवी मुलाकातों और ताल्लुकात में तफरी और हल्ले गुल्ले के लिए खासी गुंजाइश मौजूद है। कंवारे कौस ख़वातीनो हज़रात शादी के मूड में नजर नहीं आते और आपकी तरफ लोग भी ऐसे ही माइल हो रहे हैं जिनका फिलहाल शादी का कोई इरादा नहीं, शादी के इम्कानात मौजूद नहीं, लेकिन बच्चा पैदा होने के कभी इम्कानात नजर आते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए तो ये अच्छी खबर होगी, लेकिन कंवारों के लिए नहीं। उन्हें इस ज़माने में मोहतात रहने की जरूरत है। सातवें घर में मरीख का क़याम कई इशारे देता है। ताल्लुकात को कोई संजीदा शक्ल देने के बजाय आप उनसे लुत्फ उठाने के ख्वाह हैं। ऐसे ताल्लुकात उमूमन हालात की सख्ती की ताब नहीं ला पाते। यानी जब हालात अच्छे होंगे तो ताल्लुकात अच्छे अंदाज में चलेंगे और जब उतार चढ़ाव की कैफियत होगी तो ताल्लुक खत्म होने की सूरत इख्तियार कर लेगा। आपको ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार रहना होगा। मरीख की सातवें घर में मौजूदगी का दूसरा मसला ये है कि इसके तहत ताल्लुकात में इख्तियारात के हुसूल की कशमकश शुरू हो जाती है, जो कि रोमांस के लिए जहर कातिल की हैसियत रखता है। अगर आप इस कैफियत से दामन बचा सकें तो ताल्लुक के बाकी रहने के इम्कानात खातिर खा हद तक रोशन हो जाएंगे। 2022 में कौस अफराद ऐसे लोगों की तरफ माइल होंगे जिनके साथ अच्छा टाइम पास किया जा सके, जो जिंदगी से लुत्फ उठाना चाहते हों, जिनकी सोबत में आपको हंसने खेलने का मौका मिले। खिलाड़ियों के साथ आपकी अच्छी निभेगी और खेल या तफरीहात के दौरान मोहब्बत से भी आपका टकराव हो सकता है। पार्टियां और दावतें भी मोहब्बत से टकराव में अहम किरदार अदा कर सकती हैं।
हैं। चूंकि अतारत आपका मोहब्बत का सियारा होने के साथ साथ आपके 10वें यानी कैरियर के घर का हुक्मरान भी है, इसलिए आप ऐसे अफराद की तरफ माइल होंगे जो प्रोफेशनल कामयाबी हासिल कर चुके हों और अपनी कोई हैसियत बना चुके हैं। इसके अलावा रोमांस का मौका आपको कैरियर के टारगेट्स के ताक़ुब के दौरान भी मिल सकता है। 2022 में घरेलू उमूर आपकी जिंदगी में खुसूसी अहमियत रखेंगे। इससे भी आम बात यह है कि आपको जज्बाती जख्मों के अंदर मालो दौलत के मौके मिलेंगे। आप अपने माजी की गलतियों और तलखियों के नताइज का सामना करेंगे। बहुत से पुराने एहसासात जाग उठेंगे। किसी की निगाहे गलत अंदाज, किसी के बदन से उठती महक, किसी के बात करने का अंदाज, किसी का तवज्जो न देना, किसी की बेतवज्जो ही में किया गया कोई इशारा आपको उठाकर माजी के सहराओं में ले जा सकता है। जो कुछ भी होगा एक वजह, एक मकसद के तहत होगा और वो मकसद ये है कि आप अपने माजी से भागने के बजाय उस पर निगाह दौड़ाएं। जिन जख्मों को आपने दबा रखा है उन्हें थोड़ी देर के लिए हरा होने दें ताकि उनके अंदर से माल और दौलत की कोई सूरत पैदा हो सके। बचपन में जो बात आपको बहुत तल्ख लगी थी, आज उसके मुतल्लिक सोचकर शायद आपके लबों पर मुस्कुराहट आ जाए। जब आप अपनी यादों को तलखियों से पाक करेंगे तो आपकी रूहानी जिंदगी भी नई ऊंचाइयों की तरफ गामजन हो जाएगी। जज्बात तब्दील नहीं होते, लेकिन उनको देखने के हवाले से हमारा नुक्ता नजर तब्दील हो जाता है। अहमियत सिर्फ इस बात की है कि आप आगे बढ़ते रहिए। प्लूटो आपके 12वें यानी रूहानी उमूर के घर का हुक्मरान सियारा है। इसके असरात के तहत आप दौलत के रूहानी पहलुओं को ज्यादा बेहतर अंदाज में समझने लगेंगे और इसके कवानीन का इतलाक मादी दुनिया में करने लगेंगे। गुर्बत का हकीकी इलाज आपको यही मिलेगा। गुर्बत का एक मफहूम ये भी है कि अल्लाह के खजानों से आपका ताल्लुक मुनक़ता हो जाए। अल्लाह के खजाने हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे, चाहे कारोबार चल रहे हों या नहीं। जब वो अता करता है तो ये सारे अमामल बेमानी होकर रह जाते हैं। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और अपना रिश्ता खुदा से जोड़ लेते हैं, उन्हें फिर जिंदगी में किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होती। मोहतरम सेजिटेरियस खवातीनो हजरात, आपका छठा घर यानी सेहत का खाना गुज़श्ता चंद सालों से भरपूर कुव्वत में है और 2022 में भी यही कैफियत रहेगी। यूरेनस यहाँ मुकीम है। इससे मालूम होता है कि आपकी सेहत के मामलात में बहुत सी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। आप खूब से खूब तर की तलाश में हैं और जब भी आपको लगता है कि मन की मुराद मिल गई है, कोई नई और बेहतर चीज आपके सामने आ जाती है। इस रुझान के बहुत से फायदे हैं। मुख्तलिफ तरह के तजर्बात करने, मुख्तलिफ डॉक्टर्स और हकीमों को आजमाने से आपके इल्म में इजाफा हो रहा है। आप जानते हैं कि आप सबसे अलग हैं। जो चीजें दूसरों को फायदा देती हैं, जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी मुफीद हों। 2022 में आप अपने जिस्मानी निजाम, अपनी कमजोरियों और कुव्वतों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। आपकी सेहत 2022 में अच्छी रहेगी और 11 मई के बाद इसमें मजीद बेहतरी आएगी। जोरा आपकी सेहत का सियारा है, जिसकी वजह से चंद मुख्तसर मुद्दती रुझानात नमूदार हो सकते हैं, लेकिन ये रुझानात ज्यादा देर पा न होंगे और आपकी सेहत को कोई नुकसान न पहुंचा सकेंगे। खुदा आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे।